ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸਟੇਟਸ ਇੱਕ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਫॉरेन ऑफिस सर्टिफाई करेगा कि वेदर ही इज अ डिप्लोमेट, अ काउंसलर और टेक्निकल स्टाफ, कोई टेक्निकल है या कोई प्राइवेट, अगर क्लियर हो जाएगा फिर वी विल बी एबल टू डिटरमिन कि क्या वो 1961 ਦੇ ਵਿਆਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ 1963 ਵਾਲੇ ਤੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ 1961 ਔਰ 63 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਐਕਟ ਹੈ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਐਂਡ ਕਾਉਂਸਲ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਐਕਟ ਆਫ 1972, ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੋਰੋਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਟੀਫਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, determine ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ on the basis of the documentary evidence provided by the US embassy and then certified by the foreign office। ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਭੇਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਨ ਐਮਬੈਸੀ ਤੇ ਫੋਰਨ ਆਫਿਸ ਤੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। they should come clean on it। ਇਹ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ ਫੋਰਨ ਆਫਿਸ ਦੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? एक ब्रीफिंग हुई है, बाकर साहब प्रोबेबली ही वाज देयर कि क्वेश्चन किया गया, हंगामा हो गया, हाँ जी हंगामा हो गया। लिहाजा साढ़े अपने भी हुकूमती लेवल पे भी एक प्रॉब्लम आ रहा है बेसिकली, जिस तरह अब देखो ना इंटरप्रेटिव होएगा, इस वास्ते इंटरप्रेट किया जाएगा कि हुकूमत ने हजे तक अपनी क्लियर पोजीशन नहीं दी। ठीक, एक उस दिन प्रेजिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हाउस तो जी प्रेस रिलीज जारी हुई है जॉन कैरी के आने तो बाद, जिहदे च कहा गया किसास एंड दियत, यानी एक मिडल ग्राउंड उन्होंने खुद देती। ये इंटरप्रेट करना एक रिपोर्टर का काम है, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਸ ਔਰ ਦੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਵੇ ਆਊਟ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੀਕਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਲੀਕਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਨਾਟ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ। ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਫੋਟੋ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਰਡ ਸਨ ਕਿ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਦਾ एम्प्लॉई ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਦਾ एम्प्लॉई ਹੈ ਜਾਂ ਹੀ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਦੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਐਮਬੈਸੀ ਇਨ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਤਨਾ ਇਬਹਾਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋर्टर को चूंकि एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन ना गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है ना यूएस कर रहा है। एक चीज और राना साहब के कुछ दिन पहले ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੁxtਲਿਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਔਰ ਟਿੱਕਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਰੇਮਨ ਡੇਵਿਸ ਨੂੰ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਿੱਕਰ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਰੇਮਨ ਡੇਵਿਸ ਨੂੰ ਇਸਤਸਨਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਰਿਊਮਰਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो कोई पोजीशन क्लियर नहीं ली सी उस वक्त तक कि हुण की होएगा। प्रोबेबली ये सी कि इसनूं अमरीका के हवाले कर दिता जाएगा और अच्छा पंजाब हुकूमत तो लैके अडियाला जेल च लिया के फैडरल गवर्नमेंट अपने तरीके नाल उसनूं अगे लै जाएगी। जिस तरह तुहानूं पता ही है कि रहमान मलिक साहब इस वक्त ही इज द फॉरेन मिनिस्टर, ही इज द इंटीरियर मिनिस्टर एंड ही इज एवरीथिंग मिनिस्टर। ठीक है, उन्होंने कंट्रोल ले लिया होया इस चीज़ का और ये शक सी कि शायद उसमें किसी तरीके नाल इत्थों एक सेफ पैसेज दे दिता जाए। अच्छा, उस तो बाद अगे पंजाब गवर्नमेंट जी अज तुसीं अखबारां 'च देखिया कि वो अज कह रहे हैं कि जनाब सानू खतरा है कि शायद किधरे इसनूं कतल ही ना कर दिता जाए पंजाब सिक्योरिटी दे विच। ते बहुत सारी चीज़ां आ जांदियां ने। फिर दूसरा जिहड़ी पोजीशन शाह महमूद कुरैशी ने लई है, उस तो बाद आके सिचुएशन ही तब्दील हो गई है। यानी शाह महमूद कुरैशी ने आके वो काम किया जिहड़ा हुकूमत नूं करना चाहिए सी और इहदी वजह नाल वो साइड ते भी हो गए। उन्होंने कहा जी कि नो उन्होंने दी जिहड़ी मिनिस्ट्रीयल मीटिंग हुई है फॉरेन ऑफिस से, ही आस्क्ड एवरीबडी कि जनाब आप ये बताएं कि ये इम्यूनिटी हासिल है या नहीं है। इवन द थर्ड इंस्टीट्यूशन विच ही रेफर टू इन प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने सबने कहा कि नहीं है ब्लैंकेट इम्यूनिटी। सो द थिंग इज क्लियर कि फॉरेन ऑफिस की पोजीशन है कि क्लियर है। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी अगर स्टेटमेंट ना देंदे और मे बी उन्होंने खुद कुछ चीज़ें लीक की होंगी फॉरेन ऑफिस फॉरेन मिनिस्टर ओके ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਨ ਕੀਤਾ, ਡਿਸਓਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰੀਐਮਪਟ ਕਰ ਗਿਆ ਪੋਸੀਬਲ ਇੱਕ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੇ ਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕਿ ਇਜ਼ ਇਟ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਔਰ ਨਾਟ। जिस वक्त तुसीं ये कहते हो कि जनाब एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन तुसीं मैनूं इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रहे और ये कितना बड़ा एक इशू बन गया है जिहड़ा एक नेशनल इशू है और इहदे मेरा ख्याल है कि आई वुड से कि बड़ा हसास मामला है। मीडिया ने एक नेशनलिस्ट मीडिया दा रोल अदा कीता है कि मैं ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक दा मैनूं किया जा रहा है, लेकिन तारिक चौधरी साहब एक सवाल ब्रेक तो जाने तो पहले तुहाडे कोल मैं छड्डांगी कि जिस तरह गल कीती जा रही है कि पाकिस्तान दे मुख्तलिफ जिहड़े टीवी चैनल्स ने उन्हां दी रिपोर्टिंग खास तौर ते टीवी चैनल्स दे उत्ते गल आंदी है कि टिकर चला दिता जाता है बगैर तस्दीक कीते और इस केस दे अंदर भी बहुत सारे ऐसे मामला, बहुत सारे ऐसे टिकर सामने आए। तुसी क्योंकि टीवी दे नाल वाबस्ता हो, तुसी क्या समझदे हो कि कितनी मुख्तलिफ सोर्सेस तो टीवी जर्नलिस्ट नूं ओह जिहड़ी खबर ब्रेक करनी होंदी है उसनूं चेक करना चाहिए? ब्रेकिंग न्यूज़ दे दौड़ च कोई गलत इन्फॉर्मेशन आवाम तक ना जाए। इसका जवाब नाज़रीन असीं लवांगे लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
बैक नाज़रीन, गुफ्तगू दा सिलसिला अगे वधाने आ। ब्रेक तो जाने तो पहले तारिक चौधरी साहब तुहाडे कोल मैं सवाल छड्डिया सी कि रिपोर्टर जदों ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा होंदा है ते क्या समझदे हो तुसी कि बहुत सारी उसदे विच इन्फॉर्मेशन गलत भी आ जाती है बाज़ औकात, कितने एक सोर्सेस तो तुसी समझदे हो कि उसनू चेक करना चाहिए और उस खबर नू एक जामे खबर बना के अपने नाज़रीन तक पहुंचाना चाहिए? देखो, तो साडे इस प्रोफैशन दे बेसिक्स ने जो तुहाडे तक कोई खबर पहुंचदी है तुसी उन्हें बार बार चेक करो और बार बार चेक करके वेरीफाई करके तो जो तुहाडे तक मुकम्मल एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुंचे उदों तुसी उन्हें आवाम तक, अपने व्यूअर तक या अपने नाज़रीन तक पहुँचाओगे। लेकिन दोनों हज़रात ने जो गुफ्तगू की थी वो तो मैनू लग रहा कि असीं रिपोर्टिंग नू और तजज़िये नू शायद मिक्स कर गए आपस च। रिपोर्टर का काम रिपोर्ट करना है, एक इवेंट होया है, इवेंट के बारे रिपोर्ट देना है कि यह इन्फॉर्मेशन वो सामने, उस तो बाद तजज़िया करना तजज़िया निगारां का काम है। बात साढ़े जो कि रिपोर्टर भी तजज़िया निगार और तजज़िया निगार रिपोर्टर और सारा मिक्सर एक बनाया हुआ चीज़ों का इस प्रोफैशन नू मुख्तलिफ तरीके नाल सारे मिक्स हो गई ने। मैंने यकीन है कि मेरे दोस्तों ने इस गल का जरूर पता होगा कि रिपोर्टर के कोल कभी भी दुनिया शायद कोई ऐसा वाक़या होवे जिहड़ा खास तौर पर हाई प्रोफाइल वाक़या होवे जिहदे बारे मुकम्मल पिक्चर मुकम्मल इन्फॉर्मेशन उहदे कोल होवे। देखो, एक पजल तुहाडे सामने हुंदा है जो बहुत वड्डा कोई वाक़या हुंदा है, रिपोर्टर ने एक एक टुकड़ा करके तस्वीर नूं मुकम्मल करना हुंदा और बाज़ का तस्वीर एक बारे विच एक टाइम ते मुकम्मल नहीं होंदी। लेकिन उसदे विच बाकी वाला पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त है ना कि ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ खुद दस रहे होने हैं रेवन डेविस ਦਾ मामला है, ਸਾਨੂੰ नहीं पता किस एजेंसी ਦਾ है, ਅਸੀਂ खुद 3-4 एजेंसियां ਦੇ नाम ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ। अगर कोई खुद कर रहा है, अगर कोई खुद कर रहा है तो गलत है। अगर कोई खुद मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं, थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि जैसे अभी कैरी की जब विजिट से जिस रात को कैरी यहाँ पहुंचा है, रात को मीटिंग हुई है प्रेसिडेंट हाउस में और जहाँ पे बहुत से आला अहदेदारों ने शिरकत की। फैसला ये हुआ था कि 17 तारीख को जो गवर्नमेंट ने डिक्लेरेशन देना है वो ये फलां डिक्लेरेशन देगी। शाम को और उसी रात को चंद हमारे रिपोर्टर्स को पता चला तो उन्होंने टिकट चला दिए और बल्कि न्यूज़ ब्रेक कर दी, रेड अलर्ट चलना शुरू हो गए कि जी फैसला हो गया, हवालगी का फैसला हो गया। ये वो भूल गए कि 17 तारीख को एक पेशी है लाहौर हाई कोर्ट में जहां गवर्नमेंट ने डिक्लेरेशन देना है और हाई कोर्ट के वहां के चीफ जस्टिस ने ये रूलिंग दी हुई है कि ये चीज अब मेरा इंटरप्रेट करना काम है, आप सिर्फ लाके फैक्ट्स मुझे बता दे। तो वो ये चीज थोड़े से मतलब बेसिक्स को भी हम उस वक्त भूल जाते हैं इस एक्सुबरेंस में या क्या जज्बात में हम जैसे हमारे पास एक स्टोरी आती है तो थोड़ा सा बैकग्राउंड भी भूल जाते हैं कि परसों एक हाई कोर्ट की हियरिंग है जिसमें ये करना है और अडयाला जेल मूव किया जा रहा है। सर, यू आर लिविंग इन ए वेरी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। 6-7-8 टीवी चैनल चल रहे हैं, सुबह 10-15 अखबार छपने ने, ताड़ा एडिटर ताड़े को खबर मांगदा फौरी तौर पे जो ही जानकारी दी मुलाकात खबर खत्म होएगी ताड़े को खबर मांगी जाएगी। आप अगर रिस्पांसिबल प्रेसिडेंट बैठे हो और टीवी दा बड़ा और हमेशा जेडी रवैया बड़ा मुख्तलिफ है, टीवी दा रवैया बड़ा राजदा जो इन्फॉर्मेशन आती है ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देने वाला होता है। ਜਦੋਂ जानकारी दी मुलाकात के बाद खबर चलती है कि जी उसको शायद हवाले किया जा रहा है तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि उसके पीछे भी कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन आई होती है कि शायद हवाले कर दिया जाए, वो मुकम्मल ऑथेंटिक नहीं होती। मैंने पहले अर्ज किया, मैं आपसे एग्री करूं ये होता है, लेकिन उस रिपोर्टर को ये भी तो सोचना चाहिए ना कि हाई कोर्ट की रूलिंग है, उसके गवर्नमेंट कंटेम्प्ट तो नहीं कर सकती, उसने वहां स्टेटमेंट देना है, शायद इस तरह का स्टेटमेंट दे कि वो बेल आउट हो जाए। लेकिन ये तो नहीं ना कि अडयाला जेल एक रात हियरिंग से एक रात पहले टिकट चला दी, उसको अडयाला जेल मुंतकिल किया जा रहा है, वो ये फैसला हो गया, हवालगी का फैसला हो गया। थोड़ी सी मतलब टेक्निकली वो जरा सी रिपोर्टिंग को अपना पूरा पर्सपेक्टिव देखना होता है, वो हमारे नहीं होता। गल कर रहे हैं ना तारिक साहब ते बाकी साहब दोनों दा पॉइंट ऑफ व्यू बुनियादी तौर पे एक ही है, अपनी जगह दुरुस्त है। बेसिकली गल है वे कि टीवी चैनल्स के हवाले दे नाल अगर ਅਸੀਂ ਗੱਲ कर रहे हैं